नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंग्रेजी में गुड इवनिंग। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. Abaria Kochambo to our viewers in Africa, East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wow, wonderful. So Pradeep ji, today of course we remember the heroes of 2611, Yes. led by Tukaram Amle sahab. बिल्कुल सर। जी, तुकाराम अमले साहब फैंटास्टिक। अपने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन and people like that who lost their lives Martyrs. in the battle against all the terrorists. Some of them are still around. After all, you can still see Hafiz Saeed strutting about in Pakistan all over the bloody place, and And the BJP never forgets to remind the whole nation that there was no retaliation. The whole country was waiting for a retaliation after 2611, which never came. And that is what brought this government. And ever since this government, BJP has come, they are stuck to it. And the third term is on. Yes, but I wish the BJP could have also done something to bring all the rest of them to book, because they're still there in Pakistan. There were many of them जो कह रहे कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, कुछ ना कुछ हमने किया, कुछ कर दिए. We went inside, penetrated, destroyed terrorist camps, terrorist attacks, जो उनके camps थे, and the Balakot definitely airstrike was something of on top of the mountain top, जो destroy कर But दिया. Hafiz Saeed is still there. We still have to get him. जो left right उनके हैं, उनको शहीद कर दिया है. कहा गया है कि unknown men killed him. Yes, yes. Who those unknown men are, we are very grateful to them. The Canadian PM says the unknown men are here, Mr. Amit Shah. The unknown. And after that, he says there is no evidence against Mr. Amit Shah and Mr. Modi. And he says, I have very corrupt officials. He has blamed his own officials. But anyway, we remember Major Unnikrishnan. Of course, we remember Mr. Umble, Sub Inspector Umble साहब, तुकाराम उम्बले. और उसके अलावा हेमंत करकरे, अशोक कामटे, and of course our friend Vijay Saraskar. They all lost their lives at that time, and so did so many other people. 176 Many, odd people and died. innocent people lost their life. कोई रेलवे स्टेशन में, कोई 5-star hotels के अंदर, कोई एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी बम ब्लास्ट में. So all these kind of things by people who never cared, terror attacks. और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें न जाने कितने विदेशी थे, कितने अमेरिकन थे, 7 या 8 अमेरिकन थे, न जाने कितने लोग थे. वो नारीबन हाउस जो शबत हाउस बन गया, उसके ऊपर जो अटैक था, न जाने कितने को 6 के 8 यहूदियों को मतलब बिल्कुल निहत्तों को गोली मार कर सब निहत्ते तो थे. कोई आर्मी इंस्टॉलेशन को थोड़ी अटैक कर दिया था. वो बेचारे गरीब लोग जो रेलवे स्टेशन पे थे, उन पर फायरिंग कर दिया. इज अ डर्टी, आई मीन filth, absolute filth, absolute कहीं filth. पर इनको. जी, it's absolutely. And today also 26 was the Constitution Day. Constitution Day. That's right, Constitution Day it is. And everybody swears by the Constitution. And do remember, the first ever meeting of the Constituent Assembly was on December the 9th, 1948. 1948, December the 9th, that was the first Constituent Assembly meeting, chaired, I think, by Dr. B.R. Ambedkar, along with Sardar Vallabhbhai Patel, along with Harish Khare, along with Khare Saab, B.G. Khare Saab, and of course, the founder of my former school, Dr. K. Munshi, who later on also became finance minister. But those were great times. Those were great We the times. people. Very, very exciting times. Hereby resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Socialist word नहीं आया था सर, तो सेकुलर भी अभी तो है preamble. अब आ गया, 75 में आ गया सर, उसके पहले नहीं था. And the 4 pillars: justice, equality, liberty, fraternity. That's right. It is absolutely fantastic, and amazingly enough, when India was a basket case in terms of the economy, look at the way we are today. I mean, we are the 4th largest economy in the world, about to be. By next year, we will be the 4th largest economy in the world.
We will also be, uh, in terms of defense exports, we will be among the top 10 defense exporting countries in the world. And in terms of IT, we are the second largest economy in the world as far as information technology is concerned. So, And I don't think any other country in letter and spirit constitution को implement करता है जैसा इंडिया करता है, इस देश करता है. जब हम कहते हैं equality, we have equal rights for women. Even the founders, the torch bearers of democracy, that is US, doesn't have a woman president till now, and they talk about equality. Where India is always. Pradeep ji, let me. Our president is a woman. I mean, we have showcased the whole world that what we believe in. Pradeep ji, let me remind you. Right from 1948 and 1950, when the constitution was adopted, the first ever election was held in 1952. All citizens of India, irrespective of caste, creed, color, sex, have had the vote. One man, one vote. ये प्रिंसिपल रहा है भारत का. हर एक नागरिक को वोट मिला है. नंबर 1. नंबर 2, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सर, अमेरिका में you had different toilets for colored people and different toilets for white people right up till 1969. And in some states of the United States of America, till 1967, colored women were not allowed to vote. Sir, that is, after Negro women were not allowed to vote. More than a century, you don't have a woman president in US. Yes. This is so much it talks about the torchbearers of democracy. और एक और चीज बता दें सर, स्विट्जरलैंड में औरतों को वोट मालूम है कब मिला है? 1974 में सर. Women were allowed to vote in Switzerland in 1974. So, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, पहले दिन से ही यहाँ पर हर कोई, मतलब जो बराबरी का कानून है, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है. And that's why we are India. That's why we are so proud of our country. And when you talk about liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief. That's right. आप कुछ भी बोलो, ये सब हटेगा नहीं. It is there. Freedom of speech was there even in emergency. बल थोड़ा टाइम के लिए curtail किया था. Excesses थे. सर वो बहुत. But then they came back. Freedom तब भी था. आज भी मोदी शासन में कहते हैं totalitarian. क्या टोटलिटेरियन सर? बोलते हैं सर, हर रोज सोशल मीडिया पे देख लीजिए मोदी जी का कितना मजाक उड़ाया जाता है. कांग्रेस के लोग और बाकी सब लोग मोदी जी के बारे में ना जाने क्या कुछ कहते हैं. क्या टोटलिटेरियन बताइए तो. एक लेटर एंड स्पिरिट में अगर पूरे दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अपनाता है, वो हमारे देश, सिर्फ हिंदुस्तान है और कुछ नहीं. भारत देश है और कुछ नहीं. सीधी सादी बात है. एंड चलिए, अब खबर ये आ रही है, वी हैव 4 वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स इंडीड, ऑफ कोर्स, एंड वी विल गो टू देम इमीडिएटली. लेकिन आपको ये बता दूं प्रदीप जी, वो खड़गे साहब बोल रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वैसे ही ईवीएम बंद करो यात्रा शुरू करने वाले हैं. बैलेट पेपर वापस लाओ यात्रा करने वाले. आई डोंट रियली नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर. क्योंकि जब आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, जब हारते हो तो ईवीएम खराब है. ये क्या मतलब है? मगर किसी के मन में शंका है तो हर चीज, हर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए. आई एग्री विद यू, बट देन यू कलेक्ट एविडेंस एंड प्रेजेंट इट. ना, यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी. उसमें क्या? अभी एट द मोमेंट विद अस वी हैव 4 वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स इंडीड. Lakshman Saji of the Bharatiya Janata Party. We have Lakshman Saji साहब, जय सिया राम, कैसे हैं? जय सिया राम, बहुत बढ़िया. क्या बात है सर, क्या बात है. आप तो एकदम गायब ही हो गए थे, वापस ऐसे ही आ गए. सर नाशिक बहुत काम कर रहे थे. जय शिवाजी. बहुत काम कर रहे थे. ढोने साहब, हाउ आर यू सर? नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. जय भारत माता की जय सर. जय हिंद. भारत माता की जय. सुशील व्यास जी, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. तो मैं उम्मीद करता हूं कल या परसों एकनाथ शिंदे जी वापस शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री के रूप में. और आवर वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड मुकेश गांधी. वेयर आर यू गोइंग मुकेश गांधी साहब? अरे मुकेश गांधी साहब कहाँ उठ करके कहाँ जा रहे थे? अच्छा मुकेश गांधी साहब, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, एक चीज मैं बता दूं सबको. मुकेश गांधी साहब ने ये रिजल्ट प्रेडिक्ट किया था, ये बता दूं आपको. 3 हफ्ते पहले मुकेश गांधी साहब ने इसी शो के दौरान ये कहा था, इसको रिकॉर्ड करके रख लो, 200 के करीब आएगी महायुति की. अरे 200 क्या, 231, 232 हो गई. और 5 इंडिपेंडेंट जुड़ गए, 5 इंडिपेंडेंट भी जुड़ गए जी. अरे कांग्रेचुलेशन मुकेश गांधी साहब. अब आप एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दो. मतलब आचार्य मुकेश
मतलब शुरू हो जाए और फर्स्ट सर क्लास। मैंने ये भी कहा था कि हमारी अजीत पवार गठ की जी 35 to 40 सीट मिनिमम आएगी। और 41 आई, कमाल है सर, क्या 41 बात है आ सर। गई। वो रॉकी, क्या बात। एक सरप्राइज गुगली है एक आपने पश्चिम एक महाराष्ट्र आपने में इसे बढ़ा दी। परफॉर्म करना। जबरदस्त सर, जबरदस्त। लेट मी गो टू लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब बड़े दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मण सौजी साहब ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो लक्ष्मण सौजी साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज तो वैसे एकादशी भी है, पता नहीं आपने आपने तो शायद व्रत भी रखा होगा, तो चलो एक तो वो हो गया। और दूसरी चीज, इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं चाहूंगा कि सब लोग जो हैं, जो भी जब भी आपकी बारी आए बात करने की, मैं चाहूंगा कि आप जरा याद करें 26/11 को, और हमारे जितने भी लोग शहीद हुए उनको जरा स्मरण करें, क्योंकि वी शुड नेवर फॉरगेट जो 26/11 को हुआ, वी शुड नेवर एवर फॉरगेट इट। लक्ष्मण साहू साहब, अब आगे क्या, अब बताइए, इतनी ज्यादा सीटें अब आपकी आ गई, अब जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है सर। अब जी हाँ। पूरा राज्य आपकी तरफ देख रहा है कि भैया अब आप अपने वादे पूरे करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, एक एक चीज जो जो आपने वादा किया है और जो वादा नहीं भी किया है वो भी करेंगे। लक्ष्मण साहू साहब प्लीज बोलिए। पहले दो बातें कहना चाहूंगा। सर प्लीज। एक तो बात 26/11 की आपने याद दिला दी, जी उसमें जो शहीद हुए हैं, जो जाने गई है, उनके प्रति पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी और दूसरा जो 26/11 का जो हमारा और एक जो सब्जेक्ट है, संविधान गौरव दिन, जी इसके लिए भी श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करता हूं पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और घटना को, हमारे संविधान को। जी एक तो 26/11 की जो याद आती है तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दुख भी होता है कि इतने बड़े हादसे को हमको सामना करना पड़ा। जी और उधर से सबक लेकर हम अभी बहुत जागरूक हुए हैं। आज 16 साल हुए उस घटना को, जी आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। जी उसके बाद 2014 से इस मामले में जो फर्क नजर आता है विदेश नीति में, आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के रवैये के बारे में, तो उस घटना से हमने सबक ले लिया और अभी हम जागरूक हुए हैं। अभी इस तरह का कोई हमारे तरफ देखने के लिए 100 बार सोचेगा, ऐसा वातावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2014 से लेकर जो सरकार आई है वहां से हुआ है। और अभी जो संविधान गौरव दिन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, जिस माहौल से हम जा रहे हैं, संविधान का सम्मान करने के लिए हमने जो जो कदम उठाए, जो जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम जब राजनीति में काम कर रहे हैं, राजनीति में जिसका सामना कर रहे हैं, संविधान को अपमानित करने का विपक्ष कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। इसके लिए बहुत दुख होता है। संविधान के दायरे में रखकर हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हमेशा चलती है, संविधान के दायरे में रहकर जो व्यवस्थाएं काम करती है, उस व्यवस्थाओं को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना, देश के गौरव की बात देश के बाहर जाकर करने के बजाय देश को कैसे अपमानित किया जाए ऐसी बातें देश के बाहर जाकर करना, इसमें अगर जब विपक्ष जुटे हैं तो हमको डेमोक्रेटिक लिटरेसी और बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये संविधान दिन कर आज उसके अभिवादन के दिन पर, उसके गौरव दिन पर आज मुझे कहना पड़ता है। मेरे जैसा सामाजिक राजकीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को बहुत दुख होता है कि आने वाले पीढ़ियों के सामने हम क्या आइडियोलॉजी लेके जा रहे हैं। जो हमारी इतनी पवित्र लोकशाही है, जनतंत्र है, इसको हम क्यों बदनाम करने पर तुले हैं। बट साहू साहब, क्या आपको लगता है, साहू साहब जाती है, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में राहुल गांधी जी, कांग्रेस का जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना होना चाहिए, जो अलग अलग चीज है उन्होंने जो प्रोपोगेट किया था वो सब नकार दिया, लोगों ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है रिजेक्ट कर दिया है? लोकसभा के चुनाव के बाद में जो माहौल बनाया, चुनाव से पहले जो माहौल बनाया, जब इनको कोई ईवीएम के बारे में कोई
तकरार नहीं थी, कंप्लेंट नहीं थी। और जब चुनाव के बाद में जब नतीजे हमारे मन के मुताबिक आते नहीं है, फिर हमारी व्यवस्थाओं को बदनाम करना, यह कोई ठीक नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए, अपनी क्या गलतियां है, हमारी पार्टी चलाने में क्या गलती हुई है, हमारी सरकार चलाने में क्या गलती हुई है। हम लोगों के सामने सीना तान कर कुछ काम के बारे में बात करने के लिए जाना चाहिए जी। तो लोग, जनता जब नकार देती है, फिर इनको व्यवस्थाओं की गलतियां दिखती है, फिर गलतियां न होते हुए भी गलतियां दिखाने की ये साजिश रचाते हैं, कोशिश करते हैं। ये कोई हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बात सही नहीं है। इसके लिए बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। तो सर लक्ष्मण सौदी साहब, तो आपके मुताबिक नए मुख्यमंत्री जो भी बने, देवेंद्र फडणवीस साहब बने, हमारे एकनाथ शिंदे साहब रिपीट हों, या कोई और आ जाए, क्योंकि देखिए साहब, जहां तक मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी पूरी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का, आप लोग तो ऐसे ही गुगली फेंक देते हैं कि लोगों को समझ भी नहीं आता क्या हो गया। जैसे देखिए ना, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी बन गए मुख्यमंत्री, उधर अपने नयाब सिंह सैनी हरियाणा में, इधर अपने मोहन यादव जी, अरे किसी का नाम चल भी नहीं रहा है, एकदम फटाक से वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे आपके मुताबिक जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी छोटा सा आप जवाब दें, उसके बाद मैं ढोने साहब के पास जाता हूं, कि उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, फौरन किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है, लक्ष्मण सौदी साहब? सर, ये तो प्रॉब्लम के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात मैं बताता हूं, जिस तरीके से चर्चा होती है इस राजनीति में, सर, हम कोई किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना या सिर्फ सत्ता चलाना, इसके लिए राजनीति में नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का रवैया पहले से सामाजिक सुधार की तरफ, देश के उन्नति की तरफ, राष्ट्र सर्वोपरि मानकर हम इसमें चलते हैं राजनीति में। जो 100 बातें, हजारों बातें होती है, उसमें राजनीतिक चुनाव ये एक मुद्दा है। सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करने वाला हमारा दल नहीं है जी। और इसके लिए देश कैसा अच्छा चले, प्रदेश कैसा अच्छा चले, जनता को, जो गरीब से गरीब है, अंत्योदय की चित्र सामने लेकर चलते हैं कि समाज के स्तर पर जो विकास की धारा तक जो पहुंचाने है, उसके लिए काम करने के लिए सरकारें होती है। इस रवैये से सरकार चलाने के लिए हम राजनीति में हैं। सत्ता को हम साधन इसलिए मानते हैं, विकास के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सामने चुनौतियां है, जो जिस तरीके से कोरोना काल में 2.5 साल में जो एक सरकार जनता ने देखी, संकटों का सामना कैसा करना चाहिए और किस तरीके से किया गया, और बाद में 2.5 साल की जो सरकार देखी, माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा के नेतृत्व में जो सरकार देखी, उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र को आगे जाकर विकास की धरोहर में लेने के बारे में जो सोचा, और जिस तरह से लोगों ने, जनता ने जनादेश दिया, जनादेश की जब भी बातें आती है, अभी 2024 का जनादेश इस तरह से आया है, 2019 का राज्य का, महाराष्ट्र का जो जनादेश आया था, उस जनादेश को अवमानित करके, वो जनादेश को ठुकरा कर, जिस तरीके से उद्धव जी ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार ने जो सरकार बनाई थी, उसने जनादेश का राजनीति में इतना अवमान, इमरजेंसी के बाद पहली बार 1975 के बाद 2019 में पहली बार हुआ, 40 साल के बाद। ये सही नहीं है जी। इसलिए बाद में जो बदलाव हुआ जी, और बाद में 2.5 साल की जो सरकार देखी, और उसका जो नतीजा इस जनादेश में आया है, समाज के हर वर्ग को न्याय देने का जो प्रयास किया गया जी, जो प्रामाणिकता से सरकार सामने गई, चाहे किसान के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे आदिवासी के लिए हो, चाहे मागास वर्गीय के लिए हो, शिक्षा नीति के लिए हो, पानी के बारे में हो, खेती के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, सभी क्षेत्रों में जो काम किया सरकार ने, उसके ऊपर जो विश्वास लोगों ने जो जताया है, और आज का नतीजा सामने है कि जब हम चुनाव को सामने जाते वक्त जिस तरीके से गए, तो जनता ने इतना स्वागत किया कि विपक्षी लोग जिस तरीके से बदनाम करने पे तुले हुए थे, हमारी पूरी व्यवस्थाओं को बदनाम किया,
हमारे सरकार को बदनाम किया, हमारे पार्टियों को बदनाम करे, हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची गई। लेकिन जनता देख रही थी और जनता ने हमारे तरफ देखकर अभी न्याय दिया है। जी, हमारे आगे wonderful। जो महाराष्ट्र की विकास की जो चुनौतियां है उसके लिए सामना करने के लिए अभी हमारे सब तो इस तीनों विषय में और तीनों को जो समर्थन करने वाले जो दल साथ में आए हैं वो इस सब विषय पर विस्तार से बात करेंगे। अभी हम सामने जा रहे हैं। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं, वन बाय वन वील टेक इट अप। बट डॉक्टर ढोने, अकोला से इस वक्त डॉक्टर ढोने, कांग्रेस के डॉक्टर ढोने साहब। हाँ सर। सर ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड सर? व्हाट जस्ट ये हैपेंड? ऐसा ये क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं यहाँ जो उपस्थित नेता है भाजपा के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जी और और शिवसेना के, शिवसेना शिंदे गठ तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू। जी जी डॉक्टर। हाँ हाँ, ऐसा है कि देखिए लोकतंत्र में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप ये इस बात को सोचिए कि 6 महीने पहले जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ कि 48 में से 30 सीट महाविकास आघाड़ी की है और एक इंडिपेंडेंट जो भी कांग्रेस का था, बाद में जो कांग्रेस का सहयोगी सदस्य बने सांगली के, तो 31 सीटें कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की आई जी और इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई 6 महीने पहले। अब ये 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जनता ने एकदम इनको स्वीकारा और महाविकास आघाड़ी को नकार दिया? तो ये सोचने की बात है कि 6 महीने में क्या उलटफेर हुआ, ऐसी कौन सी बातें हुई कि 6 महीने में जनता ने अपना मूड एकदम बदल दिया, अपना रुख बदल दिया। तो ये आप सोचेंगे तो आपको इस विजय का जो रहस्य है वो पता चलेगा। तो उसमें ऐसा है कि 6 महीने पहले जब महायुति भाजपा और मित्र पक्ष हार गए तो उसके लिए बहुत सारी बातें थी कि क्या कारण थे कि इन्होंने पार्टियां फोड़ी थी, महंगाई बढ़ी थी, सब जो भी बातें हैं वो हार गए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति रही तो 6 महीने के बाद अपन हार जाएंगे, तो इन्होंने एक योजना रही लाडली बहना, लाड़की बहन। तो उसमें क्या हुआ कि एक एक लेडीज के खाते में 8-8 हजार रुपए गए, टोटल ऐसे कुछ 7,500 रुपए, 8,000 ऐसे पैसे गए। तो लोगों को लगा उतनी सहूलत क्या कि महंगाई इतनी बढ़ी थी, घर चलाना मुश्किल, महंगाई बढ़ गई, सब चीजों के रेट बढ़ गए और लोगों की हालत, माली हालत बहुत खराब हो गई। तो इसके लिए लोगों को लगा कि चलो इतना अपने को एक आधार मिल गया, लोगों के खाते में पैसे आए, लोगों को अच्छा लगा। और इन्होंने ऐसा बोले थे कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगे तो ये बंद कर देंगी आपके जो है, आपके जो हम पैसे डाल रहे हैं अभी लाडली बहनों के खाते में, तो वो बंद हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि ये अपने पैसे बंद हो जाएंगे, उससे अच्छा महंगाई तो कोई भी सरकार आई तो बढ़ने वाली है, आम लोगों की धारणा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, आम लोगों को लगता है कि कोई भी सरकार आई तो महंगाई तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन फिर ठीक है इन्होंने पैसे तो दिए कम से कम, तो इन्होंने लोगों ने वोट दिए, यही एक कारण है। दूसरा एक कारण ये है कि महायुति जो है उन्होंने इस तरह से प्लानिंग भी किया था कि अपने सीटें कैसे आएंगी, कैंडिडेट के तरफ ज्यादा ध्यान दिया कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ आ सकता है, जातीय समीकरण क्या है, उन्होंने कुणबी मराठा समाज के ज्यादा कैंडिडेट दिए। इसके अलावा कुछ जगह पर मैंने देखा है ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े किए कि एक तरफ ने अजित पवार गढ़ से हमारे बुल्ढाना जिले में सिंदखेड़ राजा जहाँ जिजा माता का जन्म हुआ, वो मतदार संघ की बात करता हूँ, तो अजित पवार साहब की तरफ से वहां पे मनोज कायंदे हमारे दोस्त है, कांग्रेस में थे, उनको टिकट दिया। मनोज कायंदे को, वो बंजारी समाज के हैं, उनको टिकट दिया। और उनके खिलाफ शिवसेना शिंदे गठ, इन्होंने भी एक मराठा कैंडिडेट खड़ा किया। अब वो क्यों किया मराठा कैंडिडेट खड़ा? क्योंकि जो शरद पवार साहब से थे खड़े राजेंद्र सिंह ने उनके वोट काट सके। तो यहाँ मैत्रीपूर्ण लड़त हुई, किसमें? शिंदे गठ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार, मैत्रीपूर्ण लड़त हुई। लेकिन जो इनका कैंडिडेट है शिंदे गठ का उसने जो वोट खाए वो शरद पवार की पार्टी के खाए और उसमें अजित पवार की सीट निकल गई। बट धोने साहब, ये माइक्रो प्लानिंग को आप क्या अप्रिशिएट नहीं करते हैं क्या? ये माइक्रो प्लानिंग हो गया, छोटे लेवल पे जाके जिस प्रकार से प्लानिंग कर दिया। मैं इस प्लानिंग को अप्रिशिएट करता हूं और मैं खड़गे साहब और राहुल गांधी को लेटर लिखने वाला हूं
कि अपनी क्या गलतियां हुई और उन्होंने क्या प्लानिंग किया था। तो उनका जो प्लानिंग है ये था, लेकिन बेसिकली जो है ना, इनके जो वोट बढ़े हैं वो लाडली बहनों की वजह से बढ़े हैं, जी। क्योंकि इतना एक 6 महीने में इतना बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ढोने तो साहब, एक चीज पूछूं आपसे, छोटी सी बात। हाँ हाँ पूछिए। ये मैं तब से पूछ रहा हूँ, जब से परिणाम आया मैं तब से पूछ रहा हूँ, इनफैक्ट उसके पहले से पूछ रहा हूँ। मुकेश गांधी साहब आते रहे शो में, सुशील व्यास साहब भी आते रहे, उनको याद भी होगा, और आपके सामने भी बोला मैंने कि लाडली बहन योजना जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं, इसको हल्के में मत आंकिए, ये बहुत सीरियस मैटर है आपके लिए, आपको इसका काउंटर करना पड़ेगा। आप काउंटर नहीं कर पाए, कैसे काउंटर कर सकते थे? बहुत अलग अलग तरीके, बट देन आई एम नॉट अ कंसल्टेंट विद द कांग्रेस, कांग्रेस इज नॉट पेइंग मी एनीथिंग, नाइदर इज द बीजेपी ऑफ कोर्स, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन सर दूसरी चीज क्या है, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और मैं ये रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, चुनाव के पहले से रिपीट कर रहा हूं। सर जहां पर मैं रहता हूं अंधेरी वेस्ट में, अमित साटम साहब वहां पे तीसरी बार जीत के आए, सामने हमारे बड़े अच्छे मित्र अशोक भाऊ यादव, आपको मालूम है अशोक भाऊ यादव घर से निकले नहीं है कांग्रेस के। सर मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रचारक 3 बार आए मेरी बिल्डिंग में, 3 मर्तबा आए बिल्डिंग में, और वहां से जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था, मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को मैंने 5 बार देखा, 5 बार, सिर्फ अंधेरी वेस्ट में, अलग अलग जगह पर जाते हुए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते हुए। सर ढोने साहब माफ कीजिएगा, कांग्रेस को एक बार भी नहीं देखा, एक झंडा नहीं देखा कांग्रेस का। सर कहां से जीतोगे आप बताइए ना, ईवीएम को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। और तीसरी चीज क्या है, इनकी जो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग है, जो प्रदीप भाई ने अभी बात करी है, वो आपके डॉक्टर क्या नाम है उनका, लिमय, आरएसएस के, सर उनके साथ 3,000 प्रचारकों, अतुल लिमय, 3,000 प्रचारकों की फौज, उन्होंने जाकर के सब ओबीसीज में, भले वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, और वनवासियों को सबको एकत्रित किया कांग्रेस के खिलाफ। सर कांग्रेस तो बैठ गई, उनका भी लोकसभा जीत गए, यहां पर भी जीत जाएंगे। तो ढोने साहब आपकी पार्टी ने मेहनत नहीं करी है, ये मैं मान करके चलता हूं। अब आप बोलें डॉक्टर ढोने प्लीज, बिफोर आई गो टू। नहीं कुछ नहीं, जैसा है कुछ तो गलतियां हुई उसमें। एक तो गलती ऐसी हुई जी कि जब ये लाडली बहना योजना लाई गई थी, तो लोगों ने जो शक जताया, कुछ कांग्रेस के लोगों ने, कि ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा पॉसिबल है, ये ऐसा कहां तक बांट सकते हैं। तो लोगों के दिल में हुआ कि ये बंद कर देंगे। तो ये कांग्रेस ने तो ये बोलना चाहिए कि नहीं भाई, हम इन्होंने तो 1,500 दिया, हम तो 3,000 देंगे। तो ये कांग्रेस के नेता बोले नहीं, इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा आपने पहले कहा कि तिजोरी खाली हो जाएंगे 1,500 में, और बाद में आप बोल रहे हैं हम 3,000 देंगे, तो लोग विश्वास नहीं करने लगे ढोने साहब। आप नहीं सही बात है, जैसे लोकतंत्र बराबर है आपकी बात। देखिए ऐसा है कि पहले शुरुआत से ही बोलना चाहिए, तो बीजेपी और आरएसएस से सीखना चाहिए कांग्रेस ने, झूठ बोलो लेकिन बड़े जोर शोर से बोलो, तो ये करते नहीं कांग्रेस के लोग। सर और तीसरी चीज क्या है, कांदा बटाटा दोनों हाथों में लेकर के हर जगह जाना चाहिए था ना। तो ये 1,500 रुपए तो दे रहे हैं और 10,000 रुपए ले रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए था, आपने बोला नहीं। लेकिन बराबर है, ये सही बात है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अकोले में हर एक को लगता है कि ढोने साहब के मेडिकल कॉलेज हैं, ढोले साहब के अलग अलग कॉलेज हैं, वो वहीं तक सीमित रहे, उनकी बात कोई सुनता नहीं है कांग्रेस के। नहीं हमारे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ कांग्रेस की सीट आ गई। चलिए सर, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ कांग्रेस की सीट आ गई। 30 साल के बाद कांग्रेस की सीट आई। और जो मेरा गांव है मतदार संघ, बालापुर विधानसभा मतदार संघ, वहां से भी शिवसेना की सीट आ गई, महाविकास आघाड़ी की। कमाल है सर, तो आपकी तो प्रमोशन होनी चाहिए फौरन। हाँ, या तो आपकी कांग्रेस में प्रमोशन होनी चाहिए या फिर आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, आप जैसे शख्स की बहुत जरूरत है भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं मानता हूँ। सुशील व्यास साहब, ऐसा है कि अभी जितनी जरूरत किसी कांग्रेस को हमारी नहीं थी, उतनी जरूरत अभी पड़ेगी कांग्रेस को। वेरी गुड, इसलिए हमारी वैल्यू तो बढ़ेंगी कांग्रेस में। क्योंकि कांग्रेस को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कांग्रेस जो अपने सबसे ज्यादा वफादार वर्कर होते हैं उन्हीं के खिलाफ काम करती है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। नहीं ऐसा है कि अभी जो है, जो बोलते फिनिक्स पक्षी जी, और वो जो राख हो जाती है उससे ऊपर आ जाता है, उठ जाता है ऊपर। तो वैसे अभी फिनिक्स के राख की जैसे तो कांग्रेस की पोजीशन पे आ गए अभी। मैं आज कुछ चीज लाना पड़ेगा, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लोग तंग आ गए उससे। पुरातन की
लाल किताब लेके जो आप दिखा रहे थे, शायद लोग तंग आ गए उससे। पुरातन की नहीं ऐसा है, देखिए आपको एक बात बोलता हूँ से निकलेगा एक नया कांग्रेस का पक्षी। क्या बात है सर? लाल किताब रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने, जो बार बार निकाल रहे थे। सुशील व्यास साहब, नहीं रिजेक्ट नहीं, चलिए रिजेक्ट डॉक्टर नहीं साहब आपके पास आते हैं वापस। सुशील व्यास साहब, एकनाथ शिंदे शिवसेना, तो सर शिंदे साहब के नेतृत्व में आप लोग जीत गए, तो आपको लगता नहीं है कि शिंदे साहब को कंटिन्यू करना चाहिए बतौर मुख्यमंत्री के रूप में? व्यास साहब, बजाज जी, सबसे पहले तो अभिनंदन, आपने जिस सबसे तरह से पहले तो कहा, अभिनंदन 26/11 और बहुत के बहुत जो बहुत बहुत हमारे बधाई। दुर्दैवी घटना इस शहर में हुई जी, और उनमें जो भी शहादत जिनकी भी हुई, उनको एक बार पुनः याद करते हुए उनको सलाम करते हैं। उनकी शहादत, शायद देश उससे कुछ सीखेगा एकता के बारे में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक है तो नेक है, तो वो इसी संदर्भ में कहते हैं कि हम देशवासियों को अब कम से कम बाहरी ताकतों के खिलाफ, देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ इकट्ठा होकर के एक आवाज में हमें बात करनी चाहिए। यही संदेश उनका है और यही संदेश 26/11 की दुर्दैवी घटना से देश के हर नागरिक को, भाई और बहन को लेना चाहिए। अब जो बात आपने कही, वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, ये तो घोषित विवादित कोई चीज है नहीं कि वर्तमान चुनाव घोषित रूप से सार्वजनिक, सबको पता है कि वर्तमान विकास पुरुष महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सफल नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तीनों दलों ने बड़ी मेहनत की, महायुति जिसका नाम है, और उसका हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर स्तर पर अपनी मेहनत लेकर के जनता के बीच में गया, जनता की अदालत में गया और वो सफलता हमें मिली। मैं आपके शो में भी बार बार आ रहा था, तो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने भी आपसे कहा था कि हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि क्या जनता का जो रिएक्शन जो प्रचार के दौरान मिल रहा है, वो हमें आत्मविश्वास दिलाता है कि उनका विश्वास हमें मिलने जा रहा है। जबकि हमारे दूसरे दलों के भाई जब आपके शो पे या दूसरे टीवी चैनलों पे जब हम जाते तो देखते, उनको लग रहा था कि हम कोई हवा में बातें कर रहे हैं। हम हवा में नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऐसा क्या हो गया 6 महीने में। डॉक्टर साहब बुरा न माने तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें तो आपने भी मान ली, गलतियां जो थी, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि 4 जून की गणना के बाद आपके महाविकास आघाड़ी में आधा दर्जन भावी मुख्यमंत्री हो गए थे। वो मान के चल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री हो गया। अब वो सवाल ये था कि वो वोट किस तरह से विधानसभा में ले, बंटवारा सीटों का, ये होगा तो हम नहीं बैठेंगे, ये होगा तो हम नहीं बैठेंगे, इतना ही होना चाहिए, हम इतना ही लड़ेंगे, ये उसमें लड़ते रहे। और हमने आत्म परीक्षण किया कि आखिर हम कहाँ कम रह गए कि हम 48 में से सिर्फ 17 पर घट के रह गए। तो हमने आत्म परीक्षण करके हम जनता के बीच में जाने का काम किए। हमारा मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव नहीं था जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारा मुख्यमंत्री फेस टू फेस था, हमारा मुख्यमंत्री एवरीवेयर एंड एनीवेयर था, हमारा मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री कोंकण में, मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में, MMR रीजन में, जहां जरूरत पड़ी दिन न देखा, रात न देखा, जनता के बीच में, उनके सुख दुख में, उनकी जन कल्याण की योजना में, महाराष्ट्र को विकास की तरफ आगे बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे वो वाडवन हो, ये कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, तमाम मेट्रो के जाल हो, नागपुर, पुणे, मुंबई में, ये जो चीजें हैं वो दिखती है जनता को। बाकी बातें आप लोगों में क्या हुआ, बातें हुई, आप लोगों ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, संविधान खतरे में है, फलाना खतरे में, आरक्षण हट जाएगा, वो लेकिन हम लोगों ने जनता को क्या चाहिए वो जानने की कोशिश की। उनकी अदालत में गए, उनके बीच गए और जब उनके आकांक्षा और आशाओं को हमने पूरा करने की कोशिश की, तो स्वाभाविक है कि वो हमें वो प्रत्युत्तर मिला। और वो प्रत्युत्तर जिस प्रचंड रूप में मिला, ये हम उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं महाराष्ट्र के 9,63,00,000 मतदाताओं को कि उन्होंने जो विश्वास हमें दिया है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि आने वाले 5 वर्षों में जो सेवा का मौका उन्होंने हमें दिया है, हम उतनी ही लगन और उतनी ही चेष्टा के साथ और महाराष्ट्र को विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। तो सर खबर तो दो कुछ, सर कुछ खबर तो दो, सर कुछ खबर तो दीजिए। अब ऐसा है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये घोषित रूप से था कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया, मैंने आपसे बताया, और ये भी था कि चुनाव के बाद हमारे महायुति के तीनों दलों के शीर्षस्थ नेता आपस में बैठेंगे, बिना किसी विवाद के अपना नेता चुनेंगे, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। और ये मैं आपको आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस प्रश्न को लेकर के महायुति में किसी भी स्तर का, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना है, न था, न होगा।
जो भी नेता आजकल में चुन लिया जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा और उसके नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। अब उसकी एक प्रक्रिया होती है, बजाज साहब आप जानते हैं, आप तो काफी पुराने अनुभवी व्यक्तित्व है, कि हर दल को अपना नेता चुनना पड़ता है विधानमंडल का। अब हमारे दल का नेता हमने कल एकनाथ राव जी को चुन लिया, उसी तरह से अजित पवार जी के दल ने भी उनको चुन लिया। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक अलाइज है, उनको भी अपना नेता चुनना है। अब वो उनका नेता कौन होगा, क्या होगा, कब होगा, ये अब उनका आंतरिक प्रश्न है। जब तक सभी घटक दलों के नेता नहीं चुन लिए जाते तब तक हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाने में असमर्थ है। वो जिस दिन ये तीनों दलों का नेता चुन लिए जाएंगे तब हम लोग आपस में बैठ के आप देखेंगे विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स we will decide who is our new chief minister, who is going to lead us, and it will be acceptable to all. 70% स्ट्राइक रेट, एकनाथ शिंदे जी का 70% मोर स्ट्राइक रेट है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है शिवसेना। तो एकनाथ जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद किसके पास है, वो पूरे महाराष्ट्र ने देखा। ओरिजिनल सेना कौन है, शायद ये भी बाला साहब के आशीर्वाद के साथ वो डिसाइड हो गया। लोग वोटेड, जो गद्दार 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 बोले उनको रिजेक्ट कर दिया और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को वोट किया। एकनाथ शिंदे जी ने कहा, कितना सच है उसमें? नामबिहार जी, आपने जो बातें पूछी मुझसे उसको उत्तर तो जब महाराष्ट्र की जनता ने दे ही दिया है ना, कि अब असली शिवसेना कौन है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को लेकर के आगे कौन बढ़ रहा है सशक्त रूप से, ये महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ राव जी शिंदे और उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट करके दे दिया है उसका उत्तर। अब दूसरी बात, आप जो स्ट्राइक रेट की कहते हैं तो जरा सा अटपटा सा लगता है कि स्ट्राइक रेट, जब हम लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं तो एक एक दल का स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता। हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ते हैं, तीनों दलों ने मिल के चुनाव लड़ा। जो सफलता है तो तीनों दलों की सामूहिक है। अगर कोई असफलता जून में हमारी लोकसभा में रही, वो भी हमारी सामूहिक थी। तो किसी एक दल की स्ट्राइक रेट कम ज्यादा वो उसमें नहीं देखा जाता। हमने मिल के चुनाव लड़ा है तो ये सफलता है जो सामूहिक सफलता है। निश्चित रूप से उसका नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे थे, पर इसका मतलब नहीं कि ये श्रेय उनको अकेले को जाता है। ये सारा श्रेय महायुति के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को और हमारे एक एक मतदाता का धन्यवाद हम देते हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया। जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। वेरी गुड। और उद्धव ठाकरे जी का जो बचा हुआ 20 में से शायद 18 भी आपके पास आ रहे हैं, ऐसे वातावरण है मार्केट में, इस प्रकार से चर्चा चल रहा है कि 18 भी एकनाथ जी के पास आने वाले और 2 में रह जाएंगे उद्धव जी। नामबिहार जी, कुछ चीजें तो भविष्य के गर्भ में रहने दीजिए कि उसकी डिलीवरी 9 महीने बाद होती है, तो कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, उनके पास केवल और केवल 2 विधायक रह जाए और बाकी 18 जो है मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ समय का इंतजार होना चाहिए कुछ चीजों के लिए। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अभी भी कि कांग्रेस विल कम बैक। Congress will make a huge comeback. That I am sure of. But in the meantime, let's go to मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब अभी तक कुछ बोले नहीं है। मुकेश गांधी साहब, इसके पहले मैं आपको सवाल पूछूं, मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से मुझे भारतीय जनता पार्टी की 4 महिला रैली देखने को मिली। उनमें से एक चीज मैं बताना चाहता हूँ लक्ष्मण साहू जी साहब, शायद आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा ये सुनकर के। एक जगह है जू गली, जू में एक जगह है जू गली, वहां पे जो सामने स्लम है वो जरा मुस्लिम बहुल इलाका है। सर, मैंने देखा, ये खुद सामने की बात है कि ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं, 80% ऑफ देम वेयरिंग बुर्का, सब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रही थी सर, ये आंखों देखी बात है। आप मुकेश गांधी साहब आप बोले प्लीज। राजीव जी, प्रदीप जी, धन्यवाद कि आपने सबसे पहले तो हमारे उन शहीदों का स्मरण करके आज का टॉक शो शुरू किया। मैं उन सारे शहीदों को सत प्रणाम करता हूँ और इनको शहीद बनाने वाले जो राजकारणी हो, जो हुए हमारे देश में और आज भी है, उनको मैं धिक्कार करता हूँ कि इनके कारण हमारे देश में ऐसी आतंकी घटना होती है जिनको सपोर्ट हमारे लोकल पॉलिटिशियंस देते हैं। इनका नाम मैं जानता नहीं और मैं देना चाहता भी नहीं हूं, पर ये गलत है। पर दूसरी बात ये है कि आज संविधान का दिन है जी है। इसका अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी जी ने पहले कितने सालों पहले 1914 में, और मैं साल भूल गया, तब से उन्होंने किया हुआ है। फिर भी राहुल गांधी ने संविधान बचाओ करके लोकसभा में
कि इलेक्शन के टाइम में एक रॉन्ग नरेशन फैलाने का प्रयत्न किया, जिसकी असर इलेक्शन के हमारे वोटिंग के ऊपर पड़ी और हमारे बीजेपी, एनसीपी सभी को उसका भुगतना पड़ा। पर वो वक्त चला गया है। ये इलेक्शन के दरमियान मैंने पहले ही आपको कहा था कि बात ही बात में विश्वास बदल जाता है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। और वो इतिहास में परिवर्तन लाने वाले जो कोई है तो वो है देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और शिंदे जी। इन तीनों ने मिलके पूरे महाराष्ट्र का कायाकल्प कर दिया है। और महाराष्ट्र के लोगों को प्रश्न था कि दो राष्ट्रवादी, दो शिवसेना, तो क्या करें, असली कौन नकली कौन? तो असली को जीता करके नकली को साइड में बिठा दिया है। वो भी बहुत एक अच्छा पॉलिटिक्स हो गई है। आज सबसे ज्यादा सीट 20 अपने उद्धव ठाकरे जी के पास आई है। तो मुझे शिंदे जी के प्रवक्ता को पूछना है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर 57 सीट अगर हमारे शिंदे जी जो जीत गए हैं तो माने पूरा शिवसेना का जो माहौल था वो तो शिंदे जी ने कैप्चर कर लिया। तो फिर ये 20 सीट जो आई है उद्धव जी के पास, वो शिवसेना की है कि कांग्रेस से उन्होंने चुराई हुई है? क्योंकि ये जो कहते हैं ना 18 शिवसेना एमएलए यहां से शिंदे में जाएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये कांग्रेस से चुराए हुए हैं। 4, 5, 6 सीट मैक्सिमम इसमें जेन्युइन शिवसैनिकों की शिवसेना का है, बाकी कांग्रेस से चुराया हुआ माल है। वो वहीं उद्धव जी के पास ही रहे तो अच्छा है और हमारे शिंदे में जी में ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। जी गांधी साहब बारामती में जबरदस्त तरीके से अजित पवार जी ने लाखों में जीत गया, लाखों वोट से जीत गया। पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में जो लोकसभा में सफाई हो गया था महायुति का, आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दिया। अजित पवार जी ने पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में एक लहर सा एक कर दिया। तो ये एकदम स्विच किस प्रकार से हुआ? ये स्विच आम आदमी को समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज जो लोकसभा में लाखों से हार गए वो असेंबली में लाखों से जीतता है और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र स्वीप करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? सर, फॉर्मूला जब लोकसभा की सीट में हार गए तब हमारे अजित पवार जी है, वो शिवाजी के अनन्य भक्त है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक दृष्टांत है। एक बार वो औरंगजेब के सामने लड़ते लड़ते हुए हारने के मौके पे आ गए। तीनों बाजू से औरंगजेब की सेना ने उनको कवर कर लिया। तब पूरे सेनापति ने आकर के उनको कहा कि शिवाजी महाराज अब हम जीत नहीं सकते हैं राजे, अब हम हार जाएंगे। तब शिवाजी ने अपनी आंखों से ऊपर किया और विश्वास से बोले कि तीनों बाजू से हमको कवर किया गया है, एक बाजू से हमको कवर नहीं किया गया है। तो सेनापति ने कहा कि वहां तो बहुत स्टीप चढ़ने का है, उसमें कई लोग मर भी जा सकते हैं हमारे सैनिक। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मरेगा, हौसला बुलंद करो और ये स्टीप जो एक रास्ता जो दिखता है वहां से चढ़ते जाओ। और बाद में वहां से ऐसी योजना शिवाजी ने की और तीनों बाजू से जो औरंगजेब उनके ऊपर अटैक करने वाला था वो औरंगजेब के ऊपर उन्होंने अटैक करके शिवाजी महाराज ने पूरी जो पराजय की बात थी उसको विजय में प्रदान किया। इसी तरह अजित पवार जी ने लोकसभा में एक सीट आई तब सभी लोग उनको नाराज करने को, नर्वस करने को लिए और उनको टॉन्टिंग करने के तक भी पार्टी के भी कुछ लोग उनके पास बोलते थे। पर मैंने देखा था उस टाइम में अजित पवार जी का चेहरा हंसता हुआ था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा कि हो गया सो हो गया, आता काय विचारायचा, आता आपण विधानसभामध्ये आपण आपली कमीत कमी 40 सीट जो आहे ते घेऊन येणारच। और जो लोकमान्य टिळक ने विश्वास से कहा कि स्वातंत्र्य हे माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी घेणारच, वैसा अजित पवार जी ने टिळक जी को और शिवाजी को आदर्श बना करके ये पूरी प्लानिंग उस वक्त से हमारी कोर कमेटी में चल रही थी और उसका परिणाम है। और लोग कहते थे कि पश्चिम महाराष्ट्र में साफ हो जाएंगी, शरद पवार जी का जादू चलेगा। पर अजित पवार जी ने जिस तरह से कार्य किया, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया
और एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपने पास बिठा करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके कारण हमारी ये लेकिन शरद अजीत पवार साहब तो ये ग्रुप कहते हैं, की मुकेश गांधी साहब, जबरदस्त जीत हुई है। जी, और मुकेश दूसरी गांधी बात साहब, आपको कि शरद congratulations। पवार जी ने, राजीव जी एक बात बोल दूं, खाली 1 मिनट लास्ट। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए सर, प्लीज। प्लीज प्लीज बोलिए। और शरद पवार जी का ओवर कॉन्फिडेंस, और हमेशा उन्होंने उद्धव जी की लाइन में अजीत पवार जी को टोना मारने का ही काम शुरू किया। उनके प्रवक्ता अपने थाना के हमारे भाई मित्र जो है उन्होंने चालू किया, जयंत पाटिल ने चालू किया, फिर उनके कुछ प्रवक्ता है उन्होंने चालू किया। इसके सामने अजीत पवार ने कोई टोनाबाजी नहीं की, पर उन्होंने सिस्टमेटिकली अपना प्रचार चालू किया। और देखिए कि इलेक्शन के टाइम में योगेंद्र पवार को बारामती में शरद पवार जी बाजू में रहते हैं और स्पीच करते हैं, और योगेंद्र पवार जैसे आभार विधि करते हैं ऐसा 2 मिनट बोलते हैं, तो ये योगेंद्र पवार को कोई थोड़ी मत देगा। बारामती के लोग भी जानते थे कि अजीत पवार जी ने ही बारामती का विकास किया है। ओनली ही हैज गिवन द क्रेडिट टू शरद पवार जी। तो सारे मतों का परिवर्तन हो गया और 1,14,000 मतों से हमारे अजीत पवार जी जीत गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ लोकसभा में हुआ उसका उल्टा हो गया। लेकिन अभी शरद पवार साहब ये कह रहे हैं, आदरणीय सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी ये कह रहे हैं, आदरणीय सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी भी यही कह रहे हैं कि ये तो ईवीएम का झोल है साहब। और अब एविडेंस कलेक्ट की जा रही है और सुनने में यह आया है कि 152 के करीब पिटिशंस फाइल करेंगे कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के सामने। ढोने साहब, सुनने वाली बात है, 152 के करीब पिटिशन तैयार हैं कि किस किस जगह पर ईवीएम में धांधली हुई है। ऐसा करके सब लोगों का ये मानना है। आपको क्या लगता है मुकेश गांधी साहब कि इसमें कुछ दम है क्या कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ? अब ये कहा जा रहा है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी वैसे ईवीएम हटाओ यात्रा चलाई जाएगी। अब बताइए सर, मुकेश गांधी साहब। सर, लोकशाही में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत बड़ा है जी, और उसको आज ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी प्रशंसा हुई है। और ईवीएम के कमिश्नर, अरे सॉरी, लोक अपने इनके कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने हमेशा ऑपोजिशन को बुला करके चैलेंज दी है कि आप प्रूव करो कि हमारा ये इसमें हैक कैसे हो सकता है। ये कोई मोबाइल फोन नहीं है, ये एक मशीन है और मशीन में जाकर के डायरेक्ट वोटिंग होती है और वहां आपको सिग्नल मिलती है, सब बात क्लियर होती है। तो इसमें हैक होने का कारण क्या है और ईवीएम मैनेज करने का कारण क्या है? अभी क्या है कि राजीव जी, आपको कोई खूबसूरत हसीना मिल गई और मुझे नहीं मिली तो मेरे दिल में जलन होती है ना, ऐसी जलन ये कांग्रेस वालों को और शरद पवार जी को। ये मुकेश गांधी साहब हमेशा जो हसीना हमेशा हसीना मान जाएगी की बात करते हैं। क्या बात है सर। सर, मिसेस गांधी को मालूम है ना आपकी नजर किस तरफ रहती है। सर, क्या कर रहे हो? साहू जी साहब, अब आप ये बताएं, अब तो ईवीएम हटाओ यात्रा शुरू होने वाली है, मालूम है आपको? नहीं, सब बात इसमें ऐसी है कि नतीजे आने के बाद इनको ये गलतियां दिखती है, ये राजनीति है, साफ सुथरा दिखता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हम भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कार्यकर्ता है, राजनीति में काम करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं को बदनाम करना, अपनी व्यवस्थाओं के पीछे शक करना, यह गलत बात है। शरद पवार जी ने चुनाव के बाद में पहली बार जो प्रेस लिया, संवाददाताओं के साथ चर्चा की, उस वक्त शरद पवार जी के प्रेस के स्टेटमेंट कुछ तो भी जरा मैच्योर लग रहे थे, लेकिन जब ये सब दल वाले इकट्ठे आ गए और इसमें माजरा होना चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व कोई दिखेगा नहीं। इसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद उनका रुख बदल जाता है। ये शरद पवार जी का इतना तजुर्बा, इतनी उनकी उम्र, उनका अनुभव, उसके लिए ये शोभा नहीं देता है। मुझे बहुत बुरा लगा कि 2 दिन के बाद उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। पहले उनके प्रेस में कोई स्टेटमेंट नहीं था भैया, ये गलत है उनका स्टाइल है। नहीं, ये गलत है उनका। इसमें हमने भी तकनीकी तौर पर पूरा उसकी जानकारी ली है और ये 100% पूरा झूठ है। ईवीएम के बारे में चर्चा करना, इनके जो कर्म किए हैं उनके ऊपर जी कवर करना है और जनता को मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाना है।
विकास की धारा में स्पीड ब्रेकर का काम विपक्ष करने लगा है। उनका यह पहला स्पीड ब्रेकर है यूएन के ऊपर शक करना, ऐसा मुझे लगता है। ना, साजिद साहब, संविधान पे आज जयराम रमेश ने जिस प्रकार से कहा, जयराम रमेश ने, कांग्रेस के कमेटी ने कहा कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और राइट विंग हमेशा मनुस्मृति को संविधान से जोड़ते हैं। ये क्यों संविधान से जोड़ते हैं आप मनुस्मृति? जयराम रमेश जी को याद कब कब करते हैं लोग मालूम है? पर्यावरण के बारे में महाराष्ट्र के लिए पूरी जो परमिशन दी, जो रोक के रखी थी, उसके लिए जयराम रमेश को याद किया जाता है महाराष्ट्र में हमेशा। और आज जो बात कर रहे हैं जयराम रमेश जी, वो संविधान का बारे में बात करो ना। संविधान के दायरे में सब हमारा सेंट्रल चलता है, राज्य चलती है, व्यवस्था चलती है, चुनाव होते हैं, नतीजे निकलते हैं और कारोबार भी चलता है। संविधान का अवमान कांग्रेस वालों ने जिंदगी में जितने बार किया, दूसरे किसी ने नहीं किया। संविधान निर्माताओं के बारे में, बाबा साहब के बारे में जो अवमान किया गया उनको हमेशा, वो कांग्रेस ने किया है। जयराम रमेश जी को ईवीएम के बारे में, संविधान के बारे में बोलने के लिए कोई भी हक नहीं है। सर वो तो आपके लिए बोलते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है, एक सेकंड मुकेश गांधी साहब, लक्ष्मण सौजी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जयराम रमेश जी आपके भेजे हुए हैं कांग्रेस में। जब अपना मुंह खोलते हैं तो बीजेपी के 10% वोट बढ़ जाते हैं, मुझको ऐसा लगता है। सर ढोने साहब, मुकेश गांधी साहब, मैं आता हूं आपके पास, एक सेकंड आ रहा हूं। ढोने साहब, ये आर्गुमेंट पेश की जाती है कांग्रेस की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से कि भाई ईवीएम ये जापानीज मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स हैं, जापान में ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर है। जर्मनी में ईवीएम बैन कर दिया गया, बैलेट पेपर आ गया। यूएसए ने ईवीएम बैन कर दिया, बैलेट पेपर आ गया। यूके ने ईवीएम बैन कर दिया, बैलेट पेपर आ गया। तो व्हाई आर वी गोइंग विद ईवीएम्स? ये एक आर्गुमेंट पेश की जाती है। सर आप बताएं। साहब एक वो बात करने से पहले इसके बारे में जब हम ये चर्चा करते हैं ना जी, तो बड़ी मात्रा में लोकशाही, जहां जनतंत्र है, मतदाताओं की संख्या, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जनतंत्र, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर शक करना। जो रात मेहनत करके लोग इतना, ये चुनाव कमीशन के लोग काम करते हैं सब जगह पे, इतनी बड़ी यंत्रणा में काम करते हैं, तो उनकी मेहनत के ऊपर पानी फेरना, उनके शक के दायरे में लेना, ये इनके बहुत बड़ी गलती है। ये जब इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, इनको बहुत बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। और एक को भी पनिशमेंट हो गई नहीं इसको कोर्ट पे जाने के बाद, तो आगे कोई बोलने का कोई हिम्मत नहीं करेगा इसके बारे में। चलिए डॉक्टर ढोने, आप बताइए। डॉक्टर ढोने साहब, आपने लक्ष्मण सौजी साहब को सुना, मुकेश गांधी साहब को सुना, है और सुशील व्यास जी को सुना। बोलिए। अभी पवार साहब ने जो बोले थे इसके रिजल्ट के बाद जी, कि ये जो रिजल्ट आया है, कुछ लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोगों ने ईवीएम के बारे में बोला है, लेकिन जब मेरे पास जानकारी आएंगी तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप नहीं किया था। अभी आप बोल रहे हैं कुछ, शायद आजकल में उनका कोई स्टेटमेंट आया होगा ईवीएम के बारे में, लेकिन वो इसलिए आया अभी सब लोगों का कि कल के लोकमत पेपर में, अब लोकमत तो महाराष्ट्र का एक बड़ा न्यूज पेपर है, उन्होंने कल 95 जगह बताई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे वोटिंग जो हुआ, वोटिंग मैंने कितने जो वोटिंग, जो टोटल वोटिंग जो हुआ है वो, और इनके ईवीएम मशीन में जो वोटिंग दिखाया गया है वो मैच उसमें कुछ चेंजेस दिखे। मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट, मैच नहीं किए। तो ये तो न्यूज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सबके नाम दिए गए, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। और जहां तक है, मैंने भी देखा है ऐसा, मैं भी कुछ ज्यादा मानता नहीं हूं कि ईवीएम में कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये नतीजा आने के बाद कि ऐसा मैच नहीं हुआ। देखिए, अगर किसी आदमी ने तैयार किए, लिखे कि भाई इतने इतने वोट हुए, मैन्युअली तैयार किए, और कंप्यूटराइज रहा, तो कंप्यूटराइज एकदम एग्जैक्ट आता है, उसमें गलती नहीं होती है। तो ईवीएम मशीन भी कंप्यूटराइज है, उसमें गलती नहीं होने को ना कि इतने वोट पड़े हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन वहां पे जो वोटिंग जब होता है वो सब लिखते हैं, तो इतना वोटिंग हुआ और बाद में पता चलता है कि इसमें मैच नहीं हुआ, तो लोगों को शक आता है। कई जगह पे मशीनें ऐसे लेके गए, पकड़े, लेके जाते हुए अधिकारी लोग पकड़े गए, ऐसा हुआ। कुछ लोग भाग रहे हैं ईवीएम मशीन लेके, ऐसा भी कुछ आए, वीडियो आए उसके, तो थोड़ा शक तो होना चाहिए, लोगों को शक तो होता है। अच्छा, इनको अगर कॉन्फिडेंस है जीत का, तो एक बार ये बैलेट पेपर पे लेके देखिए, बोल रहा है।
शरद पवार साहब ने कहा बड़ा स्टेट्स हमेशा बीजेपी जीत जाता है और छोटा सीट जो है, छोटा स्टेट्स वो दूसरे लोग जीत जाते हैं। शरद पवार साहब ने कहा जम्मू एंड कश्मीर हमको दे दिया और हरियाणा अपने पास रख लिया, महाराष्ट्र बीजेपी ने रख लिया और हमको दे दिया झारखंड। तो शरद पवार साहब का ऑब्जर्वेशन साहब, तो शरद पवार पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ये कोई चर्चा नहीं हुई थी जी। और ना ही पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के छोटा बाद हुई, स्टेट था क्या? तमिलनाडु के बाद भी नहीं हुई जी। हाँ, वही ना। तमिलनाडु के बाद नहीं, और ये- कर्नाटक के बाद भी मेरे नहीं को हुई। इनके कांग्रेस के नेताओं की तरफ तरस आ रहा है मेरे को। लेकिन एक चीज इतने है, दिन ऐसा से है, सवा लेकिन सौ एक साल चीज की है, पार्टी हो गई, जीत इनको का इतनी पूरा मैच्योरिटी नहीं है। या जो श्रेय है वो लाडली बहना को ही जाता है। लेकिन एक चीज बताइए सर एक चीज बताइए, ईवीएम से भी ज्यादा लाडली बहना को है डोले साहब। कि लाडली बहन। हाँ, I would like you to comment on this. After that, I'll go to Sushil Vyas साहब। सर, नांदेड़ में 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं, 6 असेंबली सीट्स हैं। 6 की 6 असेंबली सेगमेंट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और नांदेड़ की बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीती है। ये कैसे हो गया? जो लोकसभा की बाई इलेक्शन है, मतलब लोगों ने एक जगह पे कांग्रेस को वोट दिया, एक जगह पे बीजेपी को वोट दिया। ये जरा मेरे हाँ। गले नहीं उतर रहे। ये कैसे हो गया सर? ये बताओ। ये ऐसा है, जी। ये इसलिए हुआ, नहीं मैं बताऊंगा। जी नांदेड़ में जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया जी, तो उनके उसने पिताजी का ईवीएम में देहांत कुछ हुआ तो किया था। होगा। 100%। नहीं। हाँ बोलिए नहीं, डॉक्टर सुनिए। डोने बोलिए। नहीं, उनके लोकसभा में पिताजी ईवीएम कुछ तो गड़बड़ हो गई उसकी। नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलता, लोकसभा का गलत ईवीएम बात सेट किया बोलता होगा नहीं मैं। उस समय का। मैं गलत बात बोलता नहीं, जो हकीकत है वो बोलता हूँ। बोलिए ना सर। नहीं, हाँ, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा। कांग्रेस- देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी तरह से रजूआत कर रहे हैं। इज अ वेरी बैलेंस्ड मैन। That's right. I agree with you. जी बोलिए सर, डॉक्टर ढोने बोलिए। मान गए। हाँ, ऐसा है कि वो नांदेड़ के जो सांसद बने कांग्रेस के, उनके पिताजी का देहांत हुआ था। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वसंतराव चौहान। जी वसंत चौहान जो है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो अब उनकी उसके बाद 2 महीने के बाद मृत्यु हो गई। तो उनके बारे में सहानुभूति थी, एक बात। दूसरी बात, उनको जिताना था लोगों को कि भाई ये इनके पिताजी ये हो गए। और वैसे भी उनको ये अगर हार भी जाते थे, वसंत चौहान, ये इनका लड़का चौहान जो है, तो जनता को ये था कि यहाँ महाराष्ट्र में लाडली बहना स्कीम चालू रखना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस को जिताओ, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीट आगे कांग्रेस की तो चल जाती, लेकिन लाडली बहना योजना चालू रहनी चाहिए। इसलिए लोगों ने विधानसभा में लाडली बहना को वोट दिया और केंद्र में उसके बारे में सहानुभूति दिखाई। यही हुआ। क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए उठाया, मैं सबको बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के बहुत लोग ये सवाल उठा रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर ढोने ने एक्सप्लेनेशन दिया वो परफेक्ट है, वेरी फ्रैंकली, कि लोकसभा में भाई इस सीट पे हमें कांग्रेस को जिताना है और असेंबली में हमें महायुति को जिताना है। जी सुशील व्यास जी, अब आप बोले। बजाज जी, ऐसा है कि कल का जो आप नांदेड़ का रिजल्ट देखें जी, जो लोकसभा का चुनाव जो जीता है कैंडिडेट, वो जो दिवंगत सांसद के बेटे वसंत चौहान के बेटे, वो 1431 वोट से जीता है। कितना? 1431। जी जी, वेरी स्लेंडर मार्जिन, वेरी थिन मार्जिन। वेरी थिन। तो अब उसमें आप कहेंगे बाकी 6 असेंबली में वो तो उनके ही लोग जीतने चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता इस मार्जिन के साथ हम ये क्लेम करें कि बाकी 6 में भी उनको जीतना चाहिए। थोड़ा सा हमको होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर ये बात है डॉक्टर साहब, तो 4 जून को जो गणना हुई, आपकी कांग्रेस की शोभा बछावत जी जो धुलिया से जीती, वो 5 सेगमेंट में ट्रेलिंग कर रही थी। मात्र मालेगांव सेंट्रल में 1.25 लाख वोट लेके 37,000 वोट से जीत गई। अब क्या हुआ? 1.25 लाख नहीं, 1,90,000 वोट लिए। बराबर, ठीक है। बराबर। नहीं, ठीक है। अब उस मालेगांव सेंटर में क्या हुआ मालूम है आपको? आपका कांग्रेस का उम्मीदवार 5वें नंबर पे है 7,500 वोट से, और बाकी जो दो, ये तो एमआईएम का जीता 162 वोटों से। तो क्या वहां भी एमआईएम एमआईएम का जीता 162 वोटों से जीता। थोड़ा सा ग्राउंड नहीं, हमने कहा गलत बोला, नहीं हमने कहा गलत बोला, हमने कहा बोले कि नीचे की भी सीटें आने चाहिए थी। मैं बजाज जी ईवीएम पे आना चाहता हूँ। जी, बोलिए। काफी बड़ी चर्चा हुई ईवीएम की आज हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं समझता हूँ इस देश में उससे बड़ा न्यायालय तो कोई है नहीं,
नहीं। उसने फैसला कर दिया है कि ईवीएम से जो मतदान हो रहा है देश में वो कोई गलत नहीं है, बैलेट पेपर पे जाने का कोई हमारे पास कारण नहीं है, तो भविष्य के चुनाव भी जो है वो ईवीएम के माध्यम से ही होंगे। अब रही बात जो आपने कहीं वोट कम हो गए ज्यादा हो गए, 2 मिनट, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, आप भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का प्रबंधन जानते हैं। इलेक्शन कमीशन हर उम्मीदवार को, हर दल को ये मौका देता है डे 1 जब से नोटिफिकेशन आता है तब से, जब कि ईवीएम की ये नंबर की मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम से लाई जाएगी इस सेगमेंट के लिए, आप अपने प्रतिनिधि को वहां भेजें। आप भेजते हैं क्या? उसकी रिपोर्ट बनवाते हैं क्या? फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम से निकालते हैं ईवीएम मशीन, ये बूथ पे जाएगी तो आपका प्रतिनिधि साथ में जाए, भेजते हैं क्या? रिपोर्ट बनाते हैं क्या? फिर इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट को मॉक पोल के लिए 90 मिनट पहले बुलाया जाता है कि आप मॉक पोल कर लीजिए कि ईवीएम मशीन बरोबर है कि नहीं, आप मॉक पोल करके देख लीजिए। आपके प्रति जो पोलिंग एजेंट को आप ट्रेन करते हो क्या? नहीं करते हो। फिर शाम तक वहां बैठ करके पूरे पोलिंग बूथ के अंदर कितने मतदान हुआ क्या नहीं, उसका एक 17C फॉर्म होता है, तो हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म कलेक्ट करना होता है। तब तक हमारे वो एजेंट बैठते नहीं, वो निकल जाते हैं और वो कलेक्ट करते नहीं। फिर हम लोग जमा खर्च करते हैं कि यहाँ पे इतना वोट गिरा था, यहाँ हो गया। अरे भाई 17C बताइए ना, कौन से बूथ में, कौन से विधानसभा में, कौन से बूथ का 17C गलत है जो काउंटिंग से, अगर है सही बात। मान लीजिए 17C गलत हुआ तो काउंटिंग के दौरान वीवीपीएटी है, आपको कहना चाहिए इस बूथ का वीवीपीएटी खोलिए और वीवीपीएटी गिनिए। वीवीपीएटी नहीं, वो चिट होती है जो आपको बटन दबाने के बाद वो चिट नीचे गिरती है। तो अगर आपको लगता है ये 17C का बरोबर नहीं है तो आजकल एक नया बन गया 17A इन एडिशन टू 17C, तो आप उसको मैच करवाइए वीवीपीएटी। आप कुछ करेंगे नहीं, खाली चैनलों में आकर के बयानबाजी करेंगे, तो इस तरह से तो कानून नहीं चलता ना। कानून का काम करेगा और फिर इलेक्शन पिटीशन फाइल होगा तो देखा जाएगा। जी, लेकिन देश का कानून है, देश का कानून सुशील दयाल जी, डोले साहब ने आपकी बात को चुस्त दुरुस्त फरमाया है। आपकी बात के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने असल में ही जो उन्होंने बोला है वो शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने यही कहा कि जो 6 असेंबली सेगमेंट हैं वहां पर लोगों ने तय किया कि भाई वो जाएंगे महायुति के साथ, और लोकसभा में क्योंकि वसंत चौहान साहब के साहबजादे हैं इसलिए उनको जिता दिया, सीधी बात। 1431 वोट से जी। और सुशील जी आपने सही कहा कि ऑपोजिशन वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अनप्रिपेयर्ड। ये वीवीपीएटी के स्टैटिस्टिक्स लेके जाता और उसमें कुछ सच्चाई हो तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ और नतीजा होता, बट आई डोंट थिंक दे वेंट अनप्रिपेयर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। That is definitely outcome of the Supreme Court decision today. See, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप खाली अफवाहें फैला रहे हैं, कोई ठोस आधार आपके पास नहीं है, आप ठोस आधार लाइए। और ये जो कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, मान लीजिए कि ये जो ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करती है, दोनों ईसीसीएल और एचसीएल दोनों कंपनियां भारत सरकार की ओन कंपनी है, किसी प्राइवेट अडानी अंबानी की नहीं है। और इसमें कोई एक्सटर्नली कनेक्शन नहीं है कि ब्लूटूथ से जुड़ जाता है या कोई वायर से जुड़ जाता है। तो इसका कोई प्रोग्रामिंग जो होता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होता है, वो बूथ में आने के बाद प्रोग्रामिंग नहीं होता कि इसमें कौन सा उम्मीदवार है और उसको नंबर कैसे बटन दबेगा। ये तो प्रोग्रामिंग वहां मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होके आता है। ये तो सारी जनता के सामने पब्लिक डोमेन में सारी डिटेल्स हैं। उसके बावजूद अगर हम लोग इस तरह की अफवाह फैलाएं, जैसे लोकसभा में फैला दिया संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमको नुकसान हुआ उस बात का, लेकिन इस तरह के गलत नैरेटिव मत फैलाइए देश की जनता के। संजय राउत फैला रहे के बोले मोदी अमित शाह और अडानी ने उस चुनाव का पूरा नतीजा लोगों ने। नामबिहार जी मैं आपके हर शो में कहता हूं, इसलिए प्रदीप जी एक बात कहता हूं इसमें बीच में, देखिए राहुल, ये अपना संजय राउत ने एंटी गुजराती इतना माहौल मुंबई और महाराष्ट्र में खड़ा किया और सारे देश में इसको पुष्टि देने वाली भी कांग्रेस थी। तो आज क्या हो गया? नहीं गलत बात है। नहीं सुनिए सर, संजय राउत साहब ने एंटी गुजराती नहीं बोला। संजय राउत साहब सुनिए सर संजय राउत ने एंटी गुजराती बोला है। गांधी साहब आगे ये शाह और मोदी के गुजरातियों को हम बाजू पे रख देंगे, उनको दिखा देंगे, ऐसी भाषा संजय राउत बोले हैं। और बंबई के गुजरातियों ने बता दिया कि 66-7% गुजरातियों के वोटिंग ने कांदीवली, बोरीवली, घाटकोपर, मुलुंड और जहां जहां भी बंबई में 60 लाख गुजराती बसते हैं, मारवाड़ी है, इन सभीयों ने मिलकर के संजय राउत के चेहरे पे एक कालीन लगा दी है
समाज चला डोंट गया। स्पीक अगेन अगेंस्ट अस। नहीं, देखिए ऐसा ठीक है, है, दोनों संजय साफ राउत बोलो, साहब बोलिए। जो बोलते हैं वो अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते नहीं तो नहीं नहीं तो नहीं अमित शाह ये के साथ नहीं, तो सुनिए, कुछ भी गलत वो बोलते हैं, पर अदानी गुजरातियों के वो साथ में अदानी बोलते और हैं। अंबानी के खिलाफ बोलते हैं, और तो आप उनका उनको ऐसा संजय क्यों राउत समझ का के चलते हैं कि गुजरातियों के साहब, खिलाफ बोलते हैं? संजय उन्होंने राउत बोला का होगा गुजराती, कि ये तो गुजरात संजय के लोग राउत का हैं, गुजराती गुजरात के द्वेष, लोग हैं, तो एक- गुजराती, एक- देखिए सर, आप मेरी एक बात अमित सुनिए, शाह आप को, मेरी एक बात सुनिए। अमित शाह का आप गुजराती मेरी- है, अमित शाह नहीं, का नहीं, अमित शाह गुजराती, वो जैन है, तो कौन है? मराठी है? नहीं गुजराती जैन है, वो जैन है, वो जैन और अरे समाज की जैन है बात क्या, नहीं हिंदू है, है? वो तो गुजराती जैन भी कैसे, हिंदू ही गुजरात है। में रहने वाले जैन भी गुजराती, हिंदू है वो भैया। बाकाश गुजराती क्या नहीं है, अभ्यास वो करता जैन तुम है, ये लोग? हिंदू अरे भी काय नहीं है तुम्ही वो, बोलतात? अमित शाह अरे हिंदू जैन नहीं है है, तो वो जैन जैन- है। अरे जैन माने सुनिए, हिंदू नहीं है क्या? शाह जी जैन भी नहीं, हिंदू जैन होते धर्म हैं। अलग ज्यादा है, है। जैन हिंदू नहीं रहते, अरे- जैन अलग अरे धर्म काय है। मुकेश ये क्या गांधी है, साहब ये का क्या हिंदू बात धर्म करते हैं, है। आपको मालूम है क्या क्या बकवास कुछ? करते हैं? नहीं, हिंदू ये लोग नहीं कोई- रहते, जैन जैन अलग धर्म है। सर, सनातन ये- में अरे- सनातन में सभी लोग आ जाते हैं। नहीं, है, जैन, हकीकत बौद्ध, है। सिख सब आ नहीं, जाते आप हैं। मुझे नहीं, अब नहीं, उसका- जैन धर्म है, आज- नहीं आज- गलत थोड़ी बोल रहा हूं मैं, बजाज साहब नहीं, बोलिए, नहीं, मैं राजू जैन जी- धर्म है, अलग राजू धर्म जी, है, अलग- ये अरे, कहा राजू हिंदू जी, कहाँ हो ये गए? recognized as a minority. राजीव Sir, जी एक Jain- टाइम ऐसा आया Jains था are recognized कि as a जब minority. ये हमारे गुजराती हाँ? के एक पत्रकार थे, नहीं, नहीं, नहीं। वो पत्रकार नहीं, ने सुनिए। कुछ नहीं, शिवसेना नहीं, के ऊपर ये- टीका की, इनको- ये- शिवसेना के ऊपर बजाज टीका साहब- की, तो उस बजाज वक्त साहब- बोलिए सर। हरि 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 दवे समकालीन के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को इसी संजय राउत ने हरामखोर हरि कहा था जी। और गुजरातियों का द्वेष के ऊपर पूरे आर्टिकल लिखे हुए थे। सर, मैं आप उस क्यों वक्त repeat शिवसेना कर रहे में हो? था और सावजी मैंने साहब, सावजी साहब कुछ बोलो तो, सावजी साहब बोलिए। राव जी साहब बोलिए। सर, लक्ष्मण साहू जी क्या साहब बात प्लीज। करते हो? सावजी और साहब आप- बोलिए। नहीं, देखिए, सुनिए, अलग मत सुनिए, बताइए। आप देखिए, हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे, हम अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे, तो आप ये ऐसा क्यों मानते हैं गुजरातियों के खिलाफ में? हम अदानी के खिलाफ बोलेंगे, हम अंबानी के खिलाफ बोलेंगे, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी हम गुजरातियों के खिलाफ में सर, संजय राउत भाई, जी ने हमारे भी गुजराती कुछ एक है, बाजू में- पार्टनर लोग एक हैं, बाजू में खराब हाँ, खराब गुजराती बोले है, साहब ने उसको तो ऐसा तो आप- कुछ आप नहीं, अकेले पड़ गए हैं, गुजराती अकेले। लोगों के साथ हमारे, मैं आपके साथ हूँ, उनके तले लेकिन चाटते हो आप। अरे भैया, सुनो, नहीं, डॉक्टर ऐसा गांधी जी, है। एक मिनट। डॉक्टर मेरा जो पता है बालापुर का, सुनिए, मेरे जो गांव का पता है वो है डॉक्टर सुधीर डोने, गुजरातीपुरा बालापुर, ये मेरा एड्रेस है, गुजरातीपुरे में मेरा घर है। तो मैं अगर आपके लिए मोदी के नहीं बोल खिलाफ रहा हूं, बोलूं, मैं आपके अदानी लिए नहीं अंबानी बोल रहा के हूं, खिलाफ सर। बोलूं, तो आज मैं क्या संजय गुजराती राउत लोगों के की- खिलाफ हो गया? व्यास जी कुछ बोलो, ऐसा मत व्यास जी, बोलिए। व्यास जी। संजय राउत जो आज बोलते संजय- हैं, संजय राउत अदानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, मोदी और शाह के खिलाफ बोलते हैं, तो ये तो लोकशाही में बोलेंगे ही। और उनको लग रहा है कि ये चलिए, बुरे लोग डॉक्टर हैं, साहब, आपकी ये बात गलत आ काम गई। कर रहे जी, हैं, व्यास इसलिए जी, उनके खिलाफ सर, बोलते व्यास जी, हैं। प्लीज। तो इसका सर, मतलब ये तो नहीं कि गुजराती के खिलाफ बात है। नहीं। एक छोटी सी बात अरे सुनिए, सर। मुकेश गांधी साहब, आप बहुत संजय बोल राउत रहे जी हैं। ने एक जो भी सेकंड किया होगा, सर, सर, एक व्यास जी मिनट, को बोलने एक दीजिए प्लीज। सर, व्यास राजीव जी जी, एक बोलिए। मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं आपके पास संजय आता हूँ राउत सर। ने जो भी सर, गलत you are किया welcome. होगा, Sir, और we'll come back to you. उद्धव ठाकरे मुकेश गांधी को साहब, जिस I'll तरह come से back to खत्म you. कर दिया, मुकेश उसका गांधी मुझे साहब, बहुत I'll दुख come है। back to you. Just 1 second. जी, सुशील व्यास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि हम लोग जब यहाँ प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, हमारे दलों की विचारधारा को यहाँ पे कहते हैं। आप जो चीजें कह रहे थे वो कभी कभी नहीं, इन्होंने शुरुआत की है। नहीं, सर, ये गांधी साहब ने शुरुआत की है, बोले गुजराती के खिलाफ बोलते नहीं, हैं, इसलिए मैंने बोला, मैंने शुरुआत नहीं की इसकी। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत जब बैठते हैं, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दल के प्रवक्ता हैं, और आपने जो एक बात कही कि वो हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, बहुत ये गलत बात बोला है। ये गलत चीज हो जाती है सार्वजनिक। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। एक भाई होने के नाते आपको सलाह बहुत- देता बहुत हूं गलत किया। कि आपका वाक्य नहीं, जो होता है, कांग्रेस की आपकी सोच है, पार्टी उनकी का गलती प्रवक्ता नहीं है। मैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आपसे बात कह रहा हूं। मेरी है, जगह कोई ठीक है। मेरा दूसरा कोई होता तो इसको कहता है ये हाईलाइट है, इसको एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। हम नहीं जाते, हम लोग बैठते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है। हम जब भी जहां भी मिलेंगे, गले मिलेंगे, ठीक है, हमारा अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गलत बात करके गलत सुशील नैरेटिव नहीं व्यास जी, फैलाना चाहिए, सुशील है ना? व्यास। वो एक है ना, सुशील व्यास जी, one small और एक thing. बात नहीं, संजय नहीं। राउत जी की- Gentlemen, one small thing. संजय राउत डॉक्टर जी को ढोने, कोई एक second. इस महाराष्ट्र में नहीं, ऐसा है, सुशील व्यास साहब, व्यास साहब जो है, मैं बोल रहा हूँ, जो हिंदू नहीं है, मैंने इसलिए बोला, उनका धर्म जैन धर्म This है। is information for everybody. Jains were granted special minority religion status in 2014. ऐसा सिंह पंथ के जो लोग हैं, बाकी सब लोग पारसी हैं। है। हाँ, हम सब लोग उनको सनातनियों में से एक ही मानते हैं। वो अपने आप को माने तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो उनकी मर्जी।
ऐसी क्या बात है? लक्ष्मण साहब देखिए, आप कुछ बोलने वाले थे, please। कायदे से वो धर्म है, अलग धर्म है। जी मानते बोलिए सर। धन्यवाद। जी लक्ष्मण साहू जी साहब आप कुछ बोलने वाले थे। कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, नहीं सेफ है। साहब, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इतने नीचे आकर बात करनी पड़ती है, मुझे बहुत नहीं दुख नहीं हुआ इस नहीं बात से। नहीं, मैंने नीचे आके बातें, नहीं, गांधी साहब ने नहीं, शुरुआत नहीं, की मैं है। मुझे साहब, सुनिए, ये गांधी साहब ने एकात्मता शुरुआत की की है कि वो एकात्मता की गुजरातियों बात को करने बात वाले करते, लोग संजय राउत और जैन गुजरातियों के चर्चा खिलाफ बोले, करनी इसीलिए पड़ती मैंने है बोला। हमको, ये बहुत मैंने गलत बात शुरुआत है। नहीं किए थे उसकी। और संजय राउत का बोलना आजकल कोई सीरियस लेता नहीं है, एक पहली बात। जी आजकल कोई सीरियस लेता नहीं है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी के नेता लोगों को जब मालूम हो जाएगा ना, ये नहीं बोलते 6 महीने तो 5-10 सीटें इनके बढ़ती थी शायद। सही बात है। ये Anyway, हमारा gentlemen, काम बहुत thank you very आसान much. किया संजय राउत ने। I think we have come to the end of the show. थोड़ी We've had बहुत a बची very, कुछ very वो है, meaningful वो भी discussion. चली जाएगी, उनको एक महीना भर बोलने दो, थोड़े दिन तक। जी लक्ष्मण साहू जी जनता साहब, पार्टी के राजनारायण है। लक्ष्मण साहू जी साहब, जनता पार्टी के राजनारायण। लक्ष्मण साहू जी साहब, जय मैं खाली 10 हिंद। सेकंड जी दे दूं। आपने हमारे बड़े पुराने मित्र की याद दिलवा दी सर। आपने राजनारायण साहब की याद दिलवा दी हमें, बड़े पुराने मित्र हमारे थे, आप जाने दीजिए। क्या बात। जी थैंक यू बताइए, सो मच उसके बारे में सर। कुछ बताइए। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मण साहू जी साहब जय सिया राम, थैंक यू सो मच। सुशील व्यास जी जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और धोने साहब जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार, जय नमस्कार। शिवाजी, हर नमस्कार। हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू। That was a nice discussion, not too Yes, yes, it was fine exaggerated, discussion. but that's, I think that is mainly thanks to Dr. Dhone. Yes, yes. Dr. Dhone is one of the most balanced spokespersons Yes. you'll ever come across. And as he says, he's writing a letter to Mr. Rahul Gandhi and Mr. Kharge Kharge. कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए था और आपने क्या क्या नहीं किया। Amazing. चलिए साहब, that's all that we have for this show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। फिलहाल एक कोई मनोज पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं प्रदीप जी दैट वी आर अनप्रोफेशनल। उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट, आप लोग प्रोफेशनल है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि प्रोफेशनल शो कैसे कंडक्ट किया जाता है। मोस्ट अनप्रोफेशनल वे ऑफ कंडक्टिंग ए शो, ऐसा इन्होंने लिखा है सर। क्या बात है सर। Zabardast. He doesn't know your background probably. The RKB. Sir, doesn't matter. At least he's responding. Responding. But thank you so much. यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सलाह देने के लिए। उसके अलावा 3 या 4 लोग और हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये कौन सा शो है, यहाँ तो सब लोग लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ ये क्या है, एंकर बीच में आता क्यों नहीं है, लोगों को चुप क्यों नहीं कराता है, वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है। उसके अलावा लोगों ने ये भी लिखा है कि बहुत अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और कांग्रेस को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। एक और सलाह आ रही है लोगों से कि शरद पवार जी को अब अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, कि उनकी जो 10 सीटें आई हैं वो 15 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की उसमें मिल जाएं और 25 सीटें हो जाएंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला। Definitely, मगर ये सब ऑप्शंस वो कैलकुलेट करेंगे because probably he knows he's in the evening of his life and he's much worried about his daughter Supriya Sule, as Ajit Pawar says, that उनका promotion is uppermost thing in his mind and so he has to fit her somewhere. Sir, he is 84 years old and the next election will be 5 years away. बिल्कुल। So it's going to be one hell of a task to expect a 90-year-old man to continue with the same vim and vigor as he has been for such a long time. And we saw his best this time. I mean, In he the was Lok Sabha. everywhere. He In was the yes, Lok Sabha, बिल्कुल. unfortunately it didn't work in the Vidhan Sabha. But his then- work was as good as what he did in the Lok Sabha. That's right. I mean, But the results showed something else. But look at that man walking, talking, laughing, moving. Pradeep ji, talking, you press win some, conferences. you lose some. Bilkul. That's it. Everybody thought Ajit Pawar was finished after he won exactly 1 seat. Now he's 141. He lost, Sudhitra Pawar lost by more than 1 lakh vote. That's right. And Ajit Pawar won assembly section. By One more than small 1 lakh assembly votes. by more than 1 lakh votes. Amazing, absolutely amazing. क्या बात है सर. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. हम याद करते हैं आज 26/11 के एक बार फिर जितने भी शहीद हुए लोग उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से. आज संविधान दिवस भी है, Constitution Day as well, so we remember the shoulders of giants, on the giants on whose shoulders this country is standing, all the people who work together to give us possibly the best constitution in the world. As Pradeep ji mentioned, India got a
woman prime minister way back in 1966, and the US has still not been able to get a woman prime minister. And they are the Yeah. torchbearers of democracy. They are the torchbearers of democracy. and the discrimination in the US continued right up to the 70s. Yeah. In last two elections, you had women candidate whom they could have chosen, but they refused to. They refused to. If they didn't want this election, but probably in the last election, you had Hillary Clinton. You had Hillary Clinton in 2016. Yes. So There was you- no you- excuses. There was no excuses. You chose Trump. Yes. In this election, you had Kamala Harris. Yes. You chose Trump. So Trump can only defeat women. कहने का मतलब ये हुआ. So the only time Trump came up against a man, he lost. That was against Joe Biden. But then that's a separate issue altogether. But all the same, the fact is, India is a great democracy where there's freedom of speech, freedom of expression, freedom of religion, and the kind of freedom that you don't get to enjoy anywhere else in the world. It's a great country. Let's love it. Let's appreciate it. ऐसा देश और कोई नहीं है साहब. इस जैसा देश कोई नहीं है. हमें इस देश को और इस देश के आदर्शों को सुरक्षित रखना है. ये हम सबका काम है. सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, हम सबका भी काम है. And all the political parties, their responsibility, as we always say, to safeguard the pillars of democracy, the pillars of the constitution. That's right. Because if Absolutely. it survives, the republic survives. Absolutely. तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को साहब. प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल. वो घंटी भी बज गई है, बड़ी जोर से बज गई है, जबरदस्त. और कमेंट जरूर भेजें अपने. मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लोगों ने कहा, हमको एडवाइस दी कि भाई किस तरीके से शो कंडक्ट करना चाहिए. वी अप्रिशिएट योर एडवाइस. आपको लोग तो दिलीप कुमार भी बोलते हैं of this industry. दिलीप कुमार. दिलीप कुमार साहब, हाँ कमाल है साहब. दिलीप साहब को अब तो दिलीप साहब चले गए, लगता है मेरा नंबर है जाने का. खैर, in any event, thank you so much everybody for watching, and do keep sending in your comments, howsoever colorful they are. I love your comments. I love your response. जो response आपका आता है, बड़ा जबरदस्त आता है. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय.